Hello friends, Namaskar, welcome to our YouTube channel Bajirao IS Academy. Today is 12th of September and we are going to discuss the daily Hindu newspaper analysis. So, first of all, we discuss some of our ethical terms. Today we will talk about impartiality. Even this question has been repeated twice in the UPSC mains. You can see the example. So when we say about impartiality, it means being neutral, being objective, being fair in the decision making, in the actions, in the behavior. And this is one of the very important quality for the UPSC candidate as well as the officers. Like when we talk about an example, universal adult franchise, that is the voting rights that we have got from our constitution. This voting rights is that if you are 18 or above 18, you are entitled to give vote to the candidates that are participating in the election, irrespective what is your caste, irrespective what is your religion, irrespective what is your gender. What does it mean? This means impartiality. Otherwise, if there was a partiality in the voting behavior, this will mean that there will be a lack of neutrality. So this is very important example. You can understand that our constitution makers has given to us. Even you can take many more examples, like a judge when gives the judgment, if they try to inculcate partiality, then he or she will not be able to deliver justice. So a judge needs to be impartial, a judge needs to be fairer, a judge needs to be neutral, a judge needs to be objective. That is the example. And you can also give some other examples from your daily life in the comment section. So after discussing the ethical terms, we will shift on the articles of discussion. Today तीन आर्टिकल्स हमें डिस्कस करने हैं. The first one will be related to the solar flares. Solar flares are basically the charged particles which gets emitted from the sun, and it has very much impact on the space weather as well as on the earth, specifically the satellites which are orbiting around the earth. So we will see what is this concept via animation. And also the second article will be related to the malnutrition, and you can see that there is a rising inflation in the food price, and because of that the person or the population is not able to get the enough nutrition because of lack of consumption of nutritional food. जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो फिर वो कंज्यूम कैसे करेगा एक हेल्दी डाइट. That is the important point. And also we will discuss how to mitigate this issue. The third article will be related to the simultaneous election issue. As you all know, the issue of simultaneous elections is been revolving around the news. So we will try to understand what is this simultaneous election and why it is not good for conducting simultaneous election, because it will be having greater negative impact on the concept of federalism. So we will understand how it will impact federalism. Even in the PYQ, the simultaneous election issue has been asked, and maybe this year the question related to its impact on federalism may be asked. So you will be well aware of this issue. So shifting our focus to our first editorial, it is related to pico flare jets. First of all, you see the animation. What this animation shows, this is basically the video of sun, and इस पिक्चर में सोलर फ्लेयर्स इमर्ज होती हुई निकल कर आ रही है. सोलर फ्लेयर्स क्या होती हैं? These are charged particles, and when they travel in the space, they even comes towards the earth and try to impact the atmosphere of the earth as well as the satellites which is around the influence of the earth, and even that may lead to
द कोलैप्स ऑफ वर्किंग ऑफ द सैटेलाइट्स एज वेल, जैसे जीपीएस की बात करते हैं, पावर ग्रिड की बात करते हैं, बहुत सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं। एंड इसका एक और भी अगर हम स्पेस वेदर में इम्पैक्ट देखें तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड ऑरोरा बोरियोलिस का कंसेप्ट आपने ज्योग्राफी में सुना होगा। तो दिस इज द पॉइंट। बट यहाँ पर पिको फ्लेयर जेट की बात हो रही है। व्हाट इज दिस पिको फ्लेयर जेट? तो अभी क्या है कि नासा प्लस जो आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, दोनों के एक ज्वाइंट मिशन है, दैट इज योर सोलर ऑर्बिटर एयरक्राफ्ट मिशन। इसके तहत सन की स्टडी की जा रही थी। तो इसमें जो लगा कैमरा है, इस कैमरे ने काफी नजदीक जाकर सोलर पिक्चर्स कंडक्ट करी है। एंड बेस्ड ऑन द डाटा एंड द एनालिसिस ये पता चला ये जो आपका सोलर फ्लेयर जो इमर्ज हो रहे हैं ना, तो आखिरकार इसका ऑरिजिन इस पिको फ्लेयर जेट के कारण है। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि सोलर फ्लेयर काफी विजुअल फेनोमेना है, बट इसके काउजेज का सही पता नहीं लग सका है। लेकिन इस एनालिसिस के बाद ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पिको फ्लेयर जेट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सोलर फ्लेयर। क्यों? क्या है ये पिको फ्लेयर जेट? दीज आर ऑल्सो charged particles, but these are small jets of charged particles, and these are being expelled, these are being released in the intermittent fashion. It is like कि आपका 20 से 100 सेकेंड में एक बार में ये आपका पिको फ्लेयर जेट्स निकलता है, फिर बंद हो जाता है, फिर निकलता है, फिर बंद हो जाता है। बट ये काफी कम समय के लिए रिलीज होती है। बट इसका जो पावर है इतना ज्यादा कि आप मान के चल सकते हैं एज पर द रिपोर्ट कि लगभग ये 3000 से 4000 हाउस होल्ड जो यूएस में हैं, जो कंज्यूम करते हैं एनर्जी को एक साल में, उतनी एनर्जी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में ये रिलीज कर देता है। दैट्स वाई ये कहा जा रहा है कि जो सोलर विंड निकलते हैं सन के आउटर एटमोस्फेयर दैट इज कोरोना से, तो उसके पीछे ये पिको जेट्स रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। दैट इज द पॉइंट आई ट्राई टू कन्वे, और ये आपका द हिंदू आर्टिकल में पब्लिश हुई है। प्रीलिम्स के लिए आपको ध्यान रखना है कि सोलर ऑर्बिटर मिशन ये आपका ज्वाइंट मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड द यूएस स्पेस एजेंसी दैट इज नासा। एंड व्हाट इज पिको फ्लेयर जेट, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। एंड सोलर फ्लेयर के ऊपर, उसके इम्पैक्ट के ऊपर क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं। You should be assured, and I have already asked you the PYQ related to the prelims on this topic, so you have to attempt the question that well. And also, if we try to shift next, you have to attempt the UPSC mains question. What is the question? Hunger and poverty are the biggest challenges for good governance in India still today. Evaluate how far successive governments have progressed in dealing with these homogeneous problems. Suggest measures for improvement. तो आपको ये अटेम्प्ट करना है। आफ्टर डिस्कशन ऑफ द आर्टिकल वी विल डिस्कस अबाउट दिस इश्यू, द इश्यू ऑफ malnutrition, the issue of hunger. Okay, and you have to attempt the prelims question as well, which has been mentioned in the slide. You can download the PDF from our Telegram channel. अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूले। So shifting our focus to our editorial discussion, the first article will be related to GS paper 2. तो सबसे पहली बात तो ये कि कुछ रिसेंट ईयर्स में ये देखने को मिला है कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। When we talk about food inflation, it means rise in the prices of the food. कि पहले लेट से कि एक अनाज को खरीदने में 100 रुपये कॉस्ट होते थे, अगर लेट से कि उसी का दाम 115 रुपये हो गए, 115 रुपीज़, तो इसका मतलब 15% से प्राइस बढ़ी है। तो ये मैंने एग्जांपल दिया अबाउट द फूड प्राइस इन्फ्लेशन, बिकॉज इन्फ्लेशन मीन्स इंक्रीज इन द प्राइस। तो इंडिया इज फेसिंग द एक्सेलरेटिंग फूड प्राइस इन्फ्लेशन एज वी आर सीइंग द कॉस्ट ऑफ द food products is getting increased on the monthly basis or the yearly basis, and it is more evident since 2019. And even in July this year, annual inflation exceeded 11%, the highest in a decade.
So what is its implication? Its implication is that a section of the people, even what, a larger section of the people could be facing inadequate nutrition intake. Why? Because एक तो फूड प्रोडक्ट्स के पैसे बढ़ गए, दाम बढ़ गया, ठीक है, दूसरी तरफ इनका जो इनकम है, जो इनका इनकम बढ़ना चाहिए उस रेशियो से, वो नहीं बढ़ा। तो इसका मतलब परचेजिंग पावर जो कंज्यूमर की है, जो पुअर पीपल की है, वो कम हो गई। तो पहले हो सकता है वो राइस, पल्स, व्हीट ये सब कंज्यूम कर सकते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ द फूड इन्फ्लेशन वो अब हो सकता है लिमिटेड क्वांटिटी में राइस या पल्स कंज्यूम करे, बिकॉज दाम बढ़ गई हैं, लेकिन उस रेशियो से इनका इनकम नहीं बढ़ा। दैट विल अफेक्ट इट्स न्यूट्रिशनल डाइट ऑफ द सिटीजन। दैट इज द बिगेस्ट इम्प्लीकेशन। एंड ऑल्सो it is an evidence like a state of food security and nutrition in the world। ये रिपोर्ट FAO के द्वारा जारी की गई, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इन 2021 India's 74% of the population cannot afford a healthy diet। तो आप इस रिपोर्ट को मेंशन कर सकते हैं। एंड इवन व्हाट you can understand that the trend in the price of the food in Mumbai city over 2018 to 2023 period found that जो आपका एक थाली का कोस्ट आता है, एक थाली में क्या है, जो एक समय का हम खाना खाते हैं जिसमें आपका वेरियस प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक राइस, इट मे बी पल्सेस। तो जो कोस्ट आता है एक थाली का, मुंबई की बात की जा रही है, वो कोस्ट में 65% का इजाफा आया है, जबकि एवरेज वेज ऑफ एन मैनुअल वर्कर it only rose by 38%, and if we talk about salaried worker it only rose by 28%. This means that there is a reduction in purchasing power. Why? Because despite the inflation in the food increased, but the salary, the wage hasn't been increased in that ratio. And it is also evident from the fact that there is a rise in prevalence of anemia in the latest National Family Health Survey, which was undertaken over the period of 2019 to 2021. You can understand that अगर सिचुएशन सही होती, अगर न्यूट्रिशन का सिचुएशन सही होता तो अनेमिया में कमी आती ना, लेकिन अनेमिया बढ़ी है। यू कैन सी over 50% of the adult women were estimated to be anemic। anemic मतलब क्या होता है, आयरन की कमी, लैक ऑफ आयरन इन द बॉडी। एंड दिस इश्यू affects not only the woman but the pregnant woman, the child, and other health issues arises। that is the problem। so this also represents the failure of macroeconomic policy। macroeconomic policy में हम क्या करते हैं, इन्फ्लेशन टारगेटिंग करते हैं। जैसे RBI रेपो रेट के मीटर को बढ़ाता है, कम करता है ना, इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए, कि लेट से कि अगर इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है तो रेपो रेट को क्या करेगा, बढ़ा देगा, ताकि मनी सप्लाई पर कंट्रोल किया जाए। लेकिन यहाँ पर बात मनी सप्लाई के ऊपर फोकस करने की नहीं होनी चाहिए। फोकस किस पर होनी चाहिए, कि हम कैसे फूड इन्फ्लेशन के प्राइसेस को कम करें, और उसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी सही पॉलिसी नहीं है, बिकॉज ये सप्लाई साइड का जो कंस्ट्रेंट है इन द फूड इन्फ्लेशन उसको एड्रेस नहीं करता है। होना ये चाहिए कि जो आपका फूड इन्फ्लेशन आ रहा है, क्यों आ रहा होगा, जो फूड की क्वांटिटी प्रोडक्शन हो रही है उसमें कमी आ रही होगी, या फिर डिमांड बढ़ रहा है लेकिन जो क्वांटिटी ऑफ फूड प्रोडक्शन है उसमें ग्रोथ नहीं आ रहा है। तो क्या किया जाना चाहिए था, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत थी, है ना, सप्लाई साइड को मजबूत करने की जरूरत थी। लेकिन यहाँ पर हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग पर फोकस कर रहे हैं, हम अदर डायमेंशन पर फोकस कर रहे हैं, बट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन enhancing the supply side by increasing the productivity in the agriculture sector। so we have to focus on supply side by raising the yield of the agricultural products। that is the point। and also this article talks about green revolution। as you all know,
वंस अपॉन ए टाइम इंडिया वाज फेसिंग फूड इनसिक्योरिटी। इंडिया के पास फूड नहीं होते थे अपने सिटीजन्स को फीड कराने के लिए। अमेरिका, रशिया सब पर डिपेंडेंट होता था भारत। तो 1960s के दशक में प्रयास किया गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया ताकि हम फूड इनसिक्योरिटी के कंसर्न्स को हैंडल करें, एंड इसमें सफलता भी प्राप्त हुई। एंड दैट्स व्हाई ग्रीन रिवॉल्यूशन इज सक्सेसफुल माइलस्टोन in addressing the food insecurity in India. But that green revolution focused more on cereals, अनाज जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, इस पर ज्यादा फोकस किया गया था rather than pulses which gives protein, which gives more nutrition. तो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन है, हमने इस पर फोकस किया, लेकिन अब हमें जरूरत है कि हम सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की तरफ जाएं जो न्यूट्रिशन पर ज्यादा फोकस करे। तो यहां पर ये पॉइंट बताई गई है। तो यू कैन सी द फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन फोकस्ड ऑन फूड सिक्योरिटी बट विदाउट पेइंग एनी अटेंशन टू द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड मीनिंग दैट द कॉस्ट इज राइजिंग बट we are not able to address the food inflation. That is the point. And also there was a negative effect of green revolution like rampant use of chemical fertilizer along with subsidy in excessive amount given to the farmers that resulted into the degradation of the soil along with huge resilience on the procurement prices. काफी ज्यादा प्रोक्योरमेंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा of these cereals, as you can see, जो राइस है या फिर व्हीट है इनको गवर्नमेंट प्रोक्यूर करती है एमएसपी पर, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि फार्मर्स इंसेंटिवाइज हो जाते हैं यही दो क्रॉप को कल्टीवेट करने में, अदर क्रॉप्स को कल्टीवेट नहीं करते क्योंकि उनको श्योरिटी नहीं लगती कि प्राइस इस पर हमें मिलेगा यही नहीं मिलेगा। तो हमने इन सब चीज़ों पर फोकस किया, हमने प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट पर फोकस नहीं किया। जबकि आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की तरफ जाएंगे तो पर यूनिट ऑफ लैंड में जो प्रोडक्शन होता है उनका काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू द पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट इन इंडिया। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया में पोटेंशियल है कि हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट रेज किए गए हैं। So we need second green revolution, and this second green revolution should focus on containing the rise in the price of the food, and उसके लिए क्या करना होगा, we have to take actions on many fronts. सबसे पहले yield increase करना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज लेट्स से कि लैंड हमारे पास तो लिमिटेड है ना, तो हम उस लिमिटेड लैंड से और ज़्यादा प्रोडक्ट्स बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए प्रोडक्टिविटी पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पर फोकस किए जाए सो दैट हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को एड्रेस कर सके, ये जो राइजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको एड्रेस कर सके। एंड इफ यू आर एबल टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डेफिनेटली वी विल एबल टू कंट्रोल द फूड इन्फ्लेशन, एंड इन इफेक्ट वी विल एबल टू कर्टेन द nutritional insecurity that is going to prevail these days. And also there is a need to extend irrigation to 100% of the net shown area. अभी भी आप समझते हैं कि इरिगेशन में भी पार्शियलिटी है, हमने पार्शियलिटी टर्म अभी डिस्कस किया ना, तो आप देख सकते हैं इरिगेशन सेक्टर में भी पार्शियलिटी है कि जो भारत का मैप है, एंड अगर आप इस नॉर्थ वेस्ट साइड में देखेंगे या फिर साउथ इंडिया में देखेंगे तो इधर पूरा इरिगेशन सुविधा है, लेकिन ईस्ट की तरफ बात करें, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बात करें तो फिर इरिगेशन की सुविधा नहीं है। यहाँ पर लोग अभी भी मॉनसून पर डिपेंडेंट है, बट मॉनसून तो लोगों पर डिपेंडेंट नहीं है ना, वो जब आएगी तब आएगी, हो सकता है डेफिसिट भी हो सकता है ड्राउट कंडीशन भी लेकर आए। तो ऐसे में इस एरिया का पोटेंशियल हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, and because of that we have fluctuations in the agriculture production, and that's why we are seeing crisis this year. even जब इंटरनेशनल सैंक्शंस लग जाते हैं, रशिया करे तो रशिया यूक्रेन की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि ग्रेन का या वीट का कितना ज़्यादा क्राइसिस हो रहा है वर्ल्ड ओवर में। तो ऐसे में हमें अपनी फूड सिक्योरिटी को मजबूत करनी है, तो हमें इन सब फैक्टर्स पर ध्यान देना पड़ेगा। अलोंग विथ एंड टू रेस्ट्रिक्शंस ऑन लीजिंग लैंड, काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं लैंड को लीज करने में। जो फार्मर्स हैं
या फिर जो कल्टीवेट लैंड को नहीं करते हैं, तो अगर उन्हें दूसरे को लैंड देना है तो काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस है, नॉर्म्स है, रूल्स है, रेगुलेशंस है। तो ऐसे में जो कल्टीवेटर्स हैं, है ना, वो इंसेंटिवाइज नहीं होते कि चलो भाई साहब हमने कुछ लैंड एक व्यक्ति से लिया, कुछ दूसरे से लिया, कुछ तीसरे से लिया, सबको मिलाकर एक बड़ा लैंड हम बना लेते हैं और यहाँ पर फिर हम कल्टीवेट करेंगे तो यहाँ पर आराम से मशीनरी, कैपिटल, मशीनरी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, हमारा 85% ऑफ द फार्मर्स हैज मार्जिनल एंड स्मॉल रैंकिंग, मीनिंग दे ओन्स लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, एंड बिकॉज ऑफ दैट बड़े बड़े मशीन्स यहाँ पर लागू नहीं हो पाते हैं, चल नहीं पाते हैं। जबकि यूएसए सब की बात करें तो वहाँ पर बड़े बड़े मशीन्स, ऑटोमेशंस सारे काम करते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में, लेकिन इंडिया में उल्टा है। तो दैट्स वाई ये भी डायमेंशन पर हमें फोकस करने की जरूरत है। अलोंग विद क्विकनिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एक समय हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट थे उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी ला के दिया, HYV सीड्स की टेक्नोलॉजी ला के दी। आज कहीं ना कहीं ये पीछे हैं और इनको और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। along with re-institution of extension services is what you can understand कि एक समय होता था कि जो ग्राम सेवक है वो काफ़ी ज़्यादा जाना पहचाना व्यक्ति होता था अपने पूरे विलेज में, एंड वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता था इन डिसेमिनेशन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द फार्मिंग सेक्टर। तो ऐसे में जो फार्मर्स थे उनको क्या करना है, क्या अवॉइड करना है वो पता होता था। लेकिन आजकल ये जो एक्सटेंशन सर्विसेज है वो लुप्त हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। दैट्स वाई फार्मर्स आल्सो फेसेस द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और द लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। सो वी हैव डिस्कस दिस, एंड ऑल्सो ये मैंने आपको बताया अ स्मॉल लैंड होल्डिंग परसेंटेज इन इंडिया इज वेरी मच, दिस अफेक्ट्स आवर प्रोडक्टिविटी enhancement. So there is a need to solve this issue. And also in dealing with all these crises there is a need कि स्टेट का रोल काफी महत्वपूर्ण होता है। इवन ग्रीन रिवॉल्यूशन 1 जब आया तो वहां पर स्टेट का इंटरवेंशन ही था। स्टेट ने कोशिश किया था कि जो GR है ग्रीन रिवॉल्यूशन उसको हम प्रमोट करवाएं विभिन्न राज्यों में, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कोऑर्डिनेशन काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से ही तो ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी पर काम हुआ। अब वो टेक्नोलॉजी पर काम तो हो गया लेकिन उसको स्टेट में इंप्लीमेंट करवाना था ना। बट फार्मर्स फेसेस वेरी मच रिस्की इन अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। उस समय भी वो क्राइसिस हुई थी। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं स्टेट और सेंटर को साथ में कोलैबोरेट करके आगे बढ़ने की जरूरत है। दैट इज द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को पालन करने की जरूरत है। ऑल्सो ए नॉन आइडियोलॉजिकल अप्रोच वुड बी नीडेड, चाहे वो सेंटर का हो या फिर स्टेट का हो। इवन एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो जब GR1 आया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन 1, तो उस समय हमारी इकोनॉमी सोशलिस्ट थी, लेकिन हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन 1 के माध्यम से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया, कैपिटल मशीनरी को प्रमोट करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर हमें आइडियोलॉजिकल अप्रोच नहीं लेकर चलना है, नॉन आइडियोलॉजिकल अप्रोच लेकर चलना है। तो जस्ट लाइक द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज फर्स्ट डेंट ऑन poverty, the second green revolution which will focus on nutrition, which will focus on reducing the cost, which will focus on enhancing productivity, should be the second on dealing with the nutritional deficiency. So we have discussed the first article. Now shifting our focus to the second editorial, that is related to GS paper 2, and it will be related to simultaneous election. What do you mean by simultaneous election? मैंने आपको पहले भी बहुत बार इस टॉपिक पर आर्टिकल डिस्कस किए हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शन मींस वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि आज जो आप देखते हैं लोकसभा का इलेक्शन किसी दूसरे साल में होता है, वेरियस स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस किसी दूसरे साल में होते हैं, पंचायती इलेक्शंस किसी दूसरे साल में, या फिर म्यूनिसिपल इलेक्शंस, सबके अलग अलग पीरियड है। लेकिन साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब ये हुआ कि सारे इलेक्शन को एक ही साल में ले आया जाए और फिर इलेक्शन कंडक्ट करवा दिए जाए, ताकि जो पोस्ट का बर्डन होता है और एक प्रकार से माहौल रहता है पूरा समय, जो भी आपके लीडर्स है वो इलेक्शन के प्रचार प्रसार में बझे रहते हैं, तो इन सब से मुक्ति मिले।
along with जो ऑफिसर्स रहते हैं जिनको दूसरे दूसरे काम भी रहते हैं, तो इनको भी अपॉइंट किया जाता है इलेक्शन के शेड्यूल में। तो इन सब को भी मुक्ति मिले, वो अपने अपने ड्यूटी निभाए। अलॉन्ग विथ पोस्ट को कम करने की बात कही गई थी। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स बताए गए थे, ठीक है। बट कहीं ना कहीं साइमल्टेनियस इलेक्शंस विल बी अगेंस्ट फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है? फेडरलिज्म मीन्स डिवोल्यूशन ऑफ पावर बिटवीन central government and the state government, and this power has been given by the constitution. This is the concept of federalism, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये साइमल्टेनियस इलेक्शन फेडरलिज्म को अफेक्ट कर सकता है। कैसे अफेक्ट कर सकता है? हम एक डाटा आपके सामने, टेबल आपके सामने रखेंगे, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहली बात तो ये कि जो अभी नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन होने वाला है वो लगभग आपका जून 16 2024 से पहले होगा। अभी शेड्यूल तो लॉन्च नहीं की गई है, लेकिन काफ़ी जल्द इलेक्शन कमीशन शेड्यूल भी डिसाइड करेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ 4 स्टेट ऐसे होंगे लाइक योर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा एंड सिक्किम, जो साइमल्टेनियस इलेक्शन में जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द लोकसभा। लेकिन बाकी जो स्टेट है उन्होंने ऑलरेडी इलेक्शन कंडक्ट कर लिया है, या फिर इस लोकसभा इलेक्शन के बाद इनका टर्म आएगा इलेक्शन का। तो अल्टीमेटली अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाना है तो सबसे पहली बात तो ये कि जो भी स्टेट है जो ऑलरेडी इलेक्शंस हो चुके हैं जिनके, तो जाहिर सी बात है साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए जो भी रिमेनिंग पीरियड है इन स्टेट्स का उनको कर्टेल करना पड़ेगा। और एक टेबल के अनुसार देखें तो लगभग 17 स्टेट्स ऐसे हैं उन्हें उनके टर्म से बर्खास्त किया जा सकता है अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होती है। और वो जो टर्म जिनके अंतर्गत उनको हटाया जाएगा, मान के चलिए कि इट विल बी अबाउट 1.5 year। यू कैन अंडरस्टैंड विद द गिवन टेबल, लाइक यू कैन सी ये जो टेबल है ना, इसमें ये बताया गया है ये जो आपके स्टेट्स हैं उनके पास कितना समय बचा हुआ है नेक्स्ट इलेक्शन के लिए। तो मान के चलिए कर्नाटका जिसका इलेक्शन रिसेंटली कंडक्ट हुआ था, तो उनके पास 47 मंथ्स और बचे हुए हैं नेक्स्ट इलेक्शन के लिए। तो इसका मतलब साइमल्टेनियस इलेक्शन अगर 2024 में होगा तो फिर इनको 47 मंथ का पीरियड कर्टेल करना पड़ेगा। कर्टेल करके तब तो ये आपके 2024 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। उसी प्रकार से मेघालय की बात करें तो it has 45 months to be curtailed. Along with, if you talk about Tripura, it has also 45 months to be curtailed. तो आप समझ सकते हैं कि अभी ये सब जो स्टेट है वो रिसेंटली इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे, एंड अगर यहाँ पर साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा तो ये सारे पीरियड को कर्टेल करके फ्रेश इलेक्शन करना पड़ेगा। तो आप हमें बताइए क्या ये फेडरलिज्म के खिलाफ है या नहीं है। ऑल्सो ये आप देखिए जहाँ पर 000 लिखा हुआ है, दिस मीन्स दीज 4 स्टेट ये आपका साइमल्टेनियस इलेक्शन प्रोसीड करेंगे विद द लोकसभा, बिकॉज इनका जो पीरियड ऑफ टर्म है वो मैच करता है विद द पीरियड ऑफ टर्म ऑफ लोकसभा। बट बाकी सब स्टेट्स दैट डजंट मैच, दिस मीन्स दे हैव टू कर्टेल द पीरियड ऑफ द टर्म टू गो इनटू द साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो चाहे 2024 में साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट हो या फिर 2019 में हो, 2019 नहीं 2029 में हो, बात यही है कि पीरियड ऑफ टर्म को कर्टेल करना ही पड़ेगा, एंड दैट विल बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम टू द फेडरलिज्म, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर रेज की गई, काफ़ी अच्छी पॉइंट्स थी। ऑल्सो सम अदर इश्यूज लाइक जो है, एक तो ये बात बोली जाती है कि अगर हम यूनियन गवर्नमेंट को चुनते हैं तो हम नेशनल इंटरेस्ट को दिमाग में रखते हैं। इफ़ यू चूज अ स्टेट गवर्नमेंट वी refers the state interest. That's why there is a rise in regional parties or the state party. अगर हम नेशनल इंटरेस्ट और स्टेट के इंटरेस्ट को साथ में लेकर चलते तो इतने रीजनल पार्टीज आने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो रीजनल पार्टी या स्टेट पार्टी आ रहे हैं बिकॉज स्टेट के इंटरेस्ट डिफर कर जाते हैं कंपेयर टू द नेशनल इंटरेस्ट। दैट्स वाई दिस इज द वेरी बैकबोन ऑफ द फेडरलिज्म। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो ये जो आपका आइडिया है ये टूट जाएगा, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन में क्या है कि एक ही बार इलेक्शन होगा और फिर नेशनल इंटरेस्ट हो
स्टेट इंटरेस्ट हो या फिर पंचायती या म्यूनिसिपल इश्यूज के इंटरेस्ट हो, सब एक ही बोर्ड के अंदर मर्ज हो जाएंगे। दैट विल अफेक्ट द वोटर्स अल्टीमेटली। ओके, एंड फिर ये बात कही जाती है कि अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं तो इट गिव्स यू सेविंग टू द कोस्ट, यानी कि काफ़ी पैसे की बचत होती है। एज पर द रिपोर्ट बाय द लॉ कमीशन इन 2018, इनका कहना था कि अगर हम इलेक्शन साइमल्टेनियस कंडक्ट कराते हैं तो अप्रोक्स 50% का कोस्ट बचत होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब जो रिपोर्ट है इस बात को ध्यान नहीं देता है कि इवन अगर कोस्ट लगते हैं तो द कोस्ट हैज मल्टीप्लायर इफेक्ट इन द इकोनॉमी, बिकॉज कोस्ट लगने के कारण क्या होता है, देयर इज ए इम्पैक्ट ऑन द ट्रांसपोर्टेशन, प्रिंटिंग, मीडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जनरेशन होता है ना। तो ऐसे में भी तो आपका इकोनॉमी को ही ये ऐड कर रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये कोस्ट सेविंग है। तो दिस इज नॉट ए गुड आइडिया ऑन कंडक्टिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो देयर इज ए इम्पैक्ट ऑन फेडरलिज्म, जैसे एक एग्जांपल भी कहते हैं, इसको आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर हम बात करें लोकसभा की तो हम 543 लीडर्स को चुनते हैं इन द लोकसभा, अलोंग विद 4100 असेंबली लेजिस्लेचर को चुनते हैं, अलोंग विद 89,194 अर्बन वार्ड्स, जो वार्ड्स हेड होते हैं उन्हें हम चुनते हैं, अलोंग विद अप्रोक्स 31.89 लाख इलेक्टेड पंचायत रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जो पूरे रिटायर में स्प्रेडेड है, यानी कि पंचायत समिति, डिस्ट्रिक्ट पंचायत एज वेल एज विलेज पंचायत। एंड जो हम पंचायती सिस्टम के 3 टायर्स की बात करें, विलेज पंचायत, ब्लॉक पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तो यहाँ पर हम जो कैंडिडेट को चुनते हैं वो हम लोकल इश्यूज को ध्यान में रख के चुनते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ही बोला जाता है, इफ ए वोटर इज बोदर्ड अबाउट गार्बेज मैनेजमेंट इन हर लोकेलिटी, तो फिर वो अपना वोटिंग पावर यूज करेगा उस कैंडिडेट को चुनने के लिए जो उसके समस्या का समाधान करे, रेदर कि वो नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखेगा, लोकल इंटरेस्ट को वो ज़्यादा ध्यान में रखेगा। ठीक है, बट दिस वन नेशन वन इलेक्शन कंसेप्ट विल हैव ए डैमेजिंग इफेक्ट, लाइक वेरियस इश्यूज कंसर्निंग दीज 3 टायर्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम, वो सब सब्ज्यूम हो जाएंगे अंडर जस्ट वन मैंडेट फॉर द वोटर, तो दैट विल नॉट बी ए गुड थिंग। सो फ्रेंड्स, ये हमने टोटल आर्टिकल डिस्कशन किया, होप यू अंडरस्टूड। एंड अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स, वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।